Hello everyone, good evening and welcome back everyone. So I hope all of you are doing quite good in your studies and in your preparation. So we have covered till our lecture number 9. So this is our lecture 10. So before starting with lecture 10, let's just have a quick recap of what we did in our lecture 9. So lecture 9 was completely based on practice questions and the questions were all about the recursive sequences, right? So like in the lecture 9 we have done a lot of questions where we check the monotonic nature, the bounded nature, and obviously the nature of convergence of the recursive sequence. Okay, so in lecture number 9 I have given you two questions as homework. So before starting with lecture 10 I'll be giving solution to those two questions, and I'm very happy that few of you are sharing your solutions in Telegram group. So those who could not share because they could not get the solution, no problem. I'm going to discuss the solution today so you can understand it. And still, if you have any problem, you can just ask me either in the comment section or on Telegram. All right. So let me just give you a brief description of what I'm going to cover in today's lecture 10. So we are going to cover a few theoretical statements and their proofs, and later on we are going to cover the Cauchy sequences with Cauchy first theorem on limit and second theorem on limit, and then a lot of questions. So including this lecture, maybe we are going to take 5 more lectures on sequences, and then we are good to go with the series. All right, so we are about to finish our sequence. Maybe we are going to take this week and the next half week, so we'll be finishing our sequence. All right, so let's get started with our homework questions. So I gave you two homework questions. The first one is obviously a recursive sequence where a1 and b1 are two positive numbers, and the nth term of the sequences an and bn are defined by this. So we have to discuss the monotonicity, boundedness, and obviously the convergence of the sequence an and bn. All right, so let's just go through question number 1 and its solution. So question number 1 is something like this, where your a1 and b1 are greater than 0 and your nth term an for the sequence an is defined by an minus 1 and bn minus 1. Okay, in this question there is a catch. If you remember, we have done a question based on am and gm, right? अगर आप यहाँ पे भी देखोगे an और bn को, तो you will see that an is written as the geometric mean of two numbers an minus 1 and bn minus 1, and similarly bn is written as the harmonic mean, which is hm, of two numbers an minus 1 and bn minus 1. Okay, I hope you can see that. So the one who catches this kind of thing in between the nth term, the one would be very easily able to solve this question. ठीक है, तो हमें ये पता लग गया that what an is geometric mean, that is gm of an minus 1 and bn minus 1. ठीक है, एंड वहीं पे जो हमारा bn है, that is what, that is the hm of an minus 1 and bn minus 1. अब जैसे हमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन पता था, am is greater than gm, in a similar way we also know a relation between gm and hm, and what is that relation? That geometric mean is greater than hm, right? तो अब अगर ये रिलेशन हमें पता है तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट आर an is what, an is always greater than bn for all n. ठीक है, अब इस रिलेशन को यूज करके हम an और bn का मोनोटोनिक नेचर जो है वो पता करेंगे और जो बाउंडेडनेस है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो आई होप टिल दिस पॉइंट देयर इज नो प्रॉब्लम टू एनीवन, बिकॉज इट इज जस्ट सिंपल थिंग दैट an is the geometric mean of two numbers, bn is the harmonic mean of two numbers, and geometric mean and harmonic mean have a relation where gm is greater than hm. Depending on this relation, we got a relation between nth terms of the sequence an and bn, that is an is greater than bn. All right, अब देखो हमारे पास an क्या लिखा हुआ है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ an माइनस 1 एंड bn माइनस 1. और मोनोटोनिक नेचर पता करने के लिए n प्लस 1 इंडेक्स के बीच में रिलेशन देखो या n माइनस 1 के बीच में, तो मुझे सिर्फ an माइनस 1 चाहिए. तो मैं इस रिलेशन को यूज करके क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारा an जो है वो ग्रेटर देन bn है. ठीक है, तो
इन शॉर्ट बी एन इज लेस देन ए एन, तो बी एन माइनस वन जो है वो भी तो लेस देन ए एन माइनस वन होगा, ठीक। और ए एन माइनस वन सिंपली क्या होगा, स्क्वायर रूट के साथ ए एन माइनस वन। तो व्हाट डू वी गॉट, दैट ए एन इज लेस देन ए एन माइनस वन, ठीक है। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर कंक्लूडिंग दैट सीक्वेंस ए एन जो है हमारे पास वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। एंड दिस इज हैपनिंग फॉर ऑल एन बिकॉज बी एन माइनस वन इज लेस देन ए एन माइनस वन फॉर ऑल एन। इन अ सिमिलर वे ए एन इज लेस देन ए एन माइनस वन फॉर ऑल एन। तो ए एन कैसी आ गई, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब अगर ऐसा आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो ए वन इज वॉट, ग्रेटर देन ए टू, ग्रेटर देन ए थ्री, है ना। ये रिलेशन हम लिख सकते हैं यहां से, तो बस ऐसा हमने लिख दिया, ठीक। अब हम बात करेंगे बी एन के बारे में। तो बी एन हमारे पास क्या दे रखी है, दिस इज टू टाइम्स ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन बाय ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। अब बी एन और बी एन माइनस वन के बीच में रिलेशन देखना है, तो क्योंकि हमारे पास जो ए एन है वो ग्रेटर देन बी एन है फॉर ऑल एन, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे। तो दिस इज ग्रेटर देन टू टाइम्स व्हाट, बी एन, राइट, बिकॉज ए एन माइनस वन वुड बी ग्रेटर देन बी एन माइनस वन। दिस इज बी एन माइनस वन एंड दिस इज बी एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बी एन इज ग्रेटर देन बी एन माइनस वन फॉर ऑल एन। तो क्या पता लगा कि जो सीक्वेंस बी एन है हमारे पास वो कैसी है, दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी वन इज लेस देन बी टू लेस देन बी थ्री एंड सो ऑन, दिस इज बी एन एंड वी गॉट दिस रिजल्ट, ठीक है। तो दो चीजें तो कंफर्म हो गई, मोनोटोनिक नेचर ऑफ ए एन एंड मोनोटोनिक नेचर ऑफ बी एन। तो ए एन का मोनोटोनिक नेचर क्या है कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और बी एन के बारे में क्या कह सकते हैं कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट कि इसका बाउंडेडनेस हम कैसे देखें, ठीक। तो अगर आप इस वाले रिलेशन को देखोगे जो हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए लिखा है, तो आप कह सकते हो कि B1 जो है दैट इज व्हाट, B1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट Bn, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, चेक करो, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, दैट Bn इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B1 फॉर ऑल n, ठीक है। और अगर मैं ये an वाले को देखूं तो मैं इसको देख के भी कुछ आंसर कर सकती हूँ, व्हाट, कि आपका जो an है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट a1 फॉर ऑल n। अब देखो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो यहाँ पे कि मैम an जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो थ्योरम कहती थी कि एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो इज कन्वर्जेंट। तो आप इसको बाउंडेड अबव क्यों दिखा रहे हो, बाउंडेड बिलो दिखाना चाहिए ना। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो क्या, कि बी एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसको बाउंडेड अबव दिखाना चाहिए, आप बिलो क्यों दिखा रहे हो। उसका रीजन है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक रिलेशन है किसके बीच में, ए एन और बी एन के बीच में, और वो हम यूज करेंगे कैसे, देखो अब मैं सारे कंक्लूजन्स यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। B1 जो है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू बी एन है हमारे पास, ठीक। जो हमारा ए एन है हमारे पास वो क्या लिखा हुआ है, ओके वेट, ए एन क्या दिखा है, लेस देन इक्वल्स टू, ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू A1, ठीक। और हमने एक रिलेशन पढ़ा है कहां से, GM इज ग्रेटर देन HM से, और वो क्या पढ़ा है कि AN इज ग्रेटर देन BN। अब जरा ये तीनों को कंबाइन करो आप, तो कंबाइन करके फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखो। You can write something like this, B1 is less than equals to BN, BN is less than AN and AN is less than equals to A1। अब जरा पेयरिंग जो मैं कर रही हूं उसको देखने की कोशिश करो, यहां से देखो ये वाले को मैं कह सकती हूं कि B1 लेस देन AN, तो क्या पता लगा कि सीक्वेंस AN जो है हमारे पास वो कैसी हो गई, बाउंडेड बिलो हो गई, है ना। और उसके साथ साथ वो डिक्रीजिंग तो ऑलरेडी थी ही, है ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग थी ही, और बाउंडेड बिलो भी हो गई।
तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कि सीक्वेंस an जो है वो मेरे पास कन्वर्जेंट हो गई. यस, आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर. इन अ सिमिलर वे जरा ये वाला देखो, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, bn इज लेस देन a1. तो मेरे पास सीक्वेंस bn जो है वो क्या हो गई, बाउंडेड अबव हो गई, है ना. और जो सीक्वेंस bn थी मेरे पास वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो थी ही. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, सीक्वेंस bn जो है वो भी कन्वर्जेंट हो गई. तो till this point we have proved that the sequence an is monotonically decreasing and bounded below by b1, so it is convergent, and sequence bn is monotonically increasing and bounded above by a1, so this is also convergent. Now coming to the point कि converge कर रहे हैं तो कहाँ पे converge कर रहे हैं, ठीक है. तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, an is equals to what is the relation given to us, square root of an minus 1 bn minus 1. आप चाहे ये यूज कर लो या फिर आप ये वाला रिलेशन यूज कर लो, bn is equals to 2 times an minus 1 bn minus 1 by an minus 1 plus bn minus 1. ठीक, तो सपोज करो कि हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो an है और या फिर जो an माइनस 1 है, दोनों ही कहाँ जाते हैं, l पे जाते हैं, या L1 ले लो, ठीक. और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे bn या फिर bn माइनस 1 जो भी है वो L2 पे जाता है. तो किसी भी एक रिलेशन में रख दो. सपोज हम इस वाले रिलेशन में लिमिट लगाते हैं, तो L1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, L1 इंटू L2. स्क्वायर कर दो, L1 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L2. L1 कॉमन लोगे तो आप L1 माइनस L2 इक्वल्स टू 0 आएगा. L1 इक्वल टू 0 आ गया और L1 इक्वल्स टू L2 आ गया. अब हम चूज कौन सा करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखो. क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन थी कि A1 और B1 दोनों ही पॉजिटिव हैं. अब अगर A1 और B1 दोनों ही पॉजिटिव हैं तो स्पेसिफिकली मैं अगर L1 की बात करूं, A1 अपने पास पॉजिटिव दिया हुआ है, तो L इज इक्वल टू 0 तो लिमिट नहीं हो सकती ना हमारे पास, दिस कैन नॉट बी द लिमिट. तो L1 इज इक्वल टू L2 जो होगी वो लिमिट होगी. यानी कि क्या कहने का मतलब है कि दोनों सीक्वेंस जो an और bn है वो दोनों ही सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी. और ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी am-gm वाला किया है. मतलब an जो है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक, और bn इंक्रीज कर रही है. तो bn इंक्रीज करते करते ऐसे जा रही और an इंक्रीज करते करते ऐसे आ रही है. तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहां पे दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएंगे, ठीक है. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1 where we need to check everything about the recursive sequences an and bn. All right, so now we are going to discuss the second question that I gave you as homework. That was also a very nice question और बहुत simple सा था. तो and I'm glad that few of you have got the solution. तो चलो अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया था, एक सीक्वेंस Sn दी थी, ठीक, जहां पे एक इंफॉर्मेशन दी थी कि S1 माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है. और रिलेशन दिया था क्या कि Sn प्लस 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस Sn स्क्वायर बाय a प्लस 1 and where your b is greater than a and n is greater than equals to 1. यानी ये रिलेशन कब डिफाइंड है ऐसा बोला है, ठीक है. तो वापस से मोनोटोनिक नेचर चेक करना है, बाउंडेडनेस चेक करनी है. तो देखो एक इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया दी हुई है हमको. क्या दी हुई है, ये जो S1 माइनस ए ग्रेटर देन 0 दिया और b ग्रेटर देन a दिया हुआ है. सी, b ग्रेटर देन a दिया हुआ है और अब S1 माइनस ए का हमको यूज करना है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस बी लेस देन माइनस ए. अब S1 को ऐड कर लो, S1 माइनस बी एंड दिस इज S1 माइनस ए, ठीक है. ऐसा हम कर सकते हैं यूज, देखो. और अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम क्या कुछ कमेंट कर सकते हैं, देखो. एनी वन ऑफ यू हु कैन कमेंट समथिंग ऑन दिस? नो. देखो यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरा जो S1 होगा वो लेस देन B होगा फॉर श्योर. देयर इज नो डाउट कि हमारे पास जो S1 है वो हम कुछ उसको कंक्लूड कर सकते हैं B1 के रिलेशन में, ठीक. सिंस आर B इज ग्रेटर देन A एंड आर S1 माइनस A इज ग्रेटर देन 0,
सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट S1 इज लेस देन B। जो मैंने अभी काम किया आप वो रिलेशन यूज करोगे तो यू विल गेट टू द सोल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा 0 एंड दिस इज S1 माइनस ए, और यहाँ पे आपके पास S1 माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो यू विल गेट सम रिलेशन लाइक दिस। हो गया अभी इतनी बात क्लियर? ये अब ये मिल गया तो देखो एक चीज आपको पता लग रही है यहां से कि जो मेरा S1 है वो क्या हो रहा है, वो बाउंड हो गया B से। मतलब अब हम यूज करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। n इज इक्वल टू 1 के लिए जो Sn है वो बाउंडेड हो गया। तो सपोज कर लो कि n इज इक्वल टू B के लिए भी बाउंडेड है ना, यानी n इज इक्वल टू n के लिए भी बाउंडेड है। तो सपोज करो Sn इज लेस देन B। तो अब होगा क्या, हमें n+1 के लिए दिखाना है कि ये भी ऐसा हो रहा है क्या। ठीक है, तो यहां से देखो ऐसा लिख सकती हूँ क्या मैं, Sn² इज लेस देन B², एंड फिर मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि Sn² माइनस B² इज लेस देन 0। अब द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि ऐसा क्यों किया है। अब अगर मुझे Sn+1 को बाउंडेड दिखाना है बाय B, तो आप देखो मुझे ये स्क्वायर रूट रिमूव करना पड़ेगा, और मुझे सिर्फ Sn+1 को दिखाना है किसी एक नंबर B से बाउंड करना। तो ये Sn² को मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे इस इनइक्वालिटी का यूज करना है। मतलब मुझे न्यूमरेटर में सिर्फ Sn² माइनस B² चाहिए, तो मुझे ये AB² रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं माइनस B कर दूं और फिर एलसीएम लूंगी तो AB² चला जाएगा ना। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग कि मैंने क्या किया, अब मैंने Sn+1 का स्क्वायर निकाला। ठीक है, Sn+1 का स्क्वायर और माइनस का B² कर दिया। तो क्या मिला, AB² प्लस Sn² बाई A+1 और माइनस का B²। क्या मिला, AB², ठीक है, और फिर प्लस Sn² माइनस AB² माइनस A, एंड दिस इज A+1। तो ये कैंसल आउट हो गया हमारे पास। दिस इज B², आई एम सॉरी। ठीक है, ये B² आया। तो ओवरऑल क्या मिला, Sn² माइनस B² बाई A+1। नाउ यू सी हियर, सिंस A एंड B आर पॉजिटिव एंड Sn² माइनस B² इज लेस देन 0। क्यों, क्योंकि हमने n के लिए ट्रू माना हुआ है। तो ये लेस देन 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो Sn+1 का स्क्वायर जो है माइनस B² लेस देन 0 आया। मतलब Sn+1² लेस देन B², मतलब Sn+1 is less than B। तो by mathematical induction we proved that Sn is, by mathematical induction we got that Sn is less than B for all n। It means what, कि जो सीक्वेंस Sn है हमारे पास वो कैसी है, that is bounded। अब हमें मोनोटोनिक नेचर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर रूट की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो Sn+1² माइनस Sn² देखते हैं, तो क्या आएगा, दिस इज AB² प्लस Sn² बाय A+1 और माइनस का Sn²। ठीक, क्या मिला, AB² प्लस Sn² माइनस ASn² माइनस Sn² बाय A+1। ठीक है, तो ये Sn² कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और अब आप देखो अगर आप A कॉमन कर लेते हो तो आपको क्या मिला, B² माइनस का Sn² बाय A+1। एंड यू ऑलरेडी नो सिंस A एंड B आर पॉजिटिव, एंड अभी आपने बाउंडेडनेस से प्रूफ करके आए हो कि Sn इज लेस देन B। इट मीन्स व्हाट, B² माइनस Sn² क्या हो रहा है हमारे पास, देखो पॉजिटिव आएगा, B² माइनस Sn²। तो ये जो टर्म आपने लिखी है Sn+1² माइनस Sn², इसका नेचर आपको पता लग गया क्या, कि दिस इज पॉजिटिव, राइट। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन कंक्लूड, Sn+1 या Sn, दिस काइंड ऑफ रिलेशन होल्ड्स फॉर ऑल n, एंड फिर यहां से हम क्या कंक्लूड कर देंगे कि Sn+1 इज ग्रेटर देन Sn फॉर ऑल n। तो यहां से क्या कंक्लूड किया कि जो Sn है मेरे पास वो कैसी है, दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बाउंडेड बिलो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ठीक है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमने अभी दिखा दिया। तो इन दोनों से व्हाट डू वी कंक्लूडेड,
कि जो सीक्वेंस Sn है मेरे पास वो कैसा है, दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब पॉइंट आता है क्या, अब पॉइंट ये आता है कि भाई अगर कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट क्या है। तो सिंपल है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे Sn और Sn+1 दोनों सपोज कर लो a पे जा रहे हैं। अब a नहीं ले सकते यहाँ पे क्योंकि a ऑलरेडी दिया हुआ है एज अ कांस्टेंट, तो l मान लो। ठीक, अब यहाँ दिया हुआ है Sn+1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ab स्क्वायर प्लस Sn स्क्वायर बाय a+1। ठीक है, रखो जरा, तो दिस इज l स्क्वायर ab स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय a+1। तो this is L square A plus L square, then this is AB square plus L square. L square got cancelled out. You took A as a common. L square minus B square 0. So you are getting L is equals to plus minus B. Now you know that since A and B both are positive, so it's not possible that L is equals to minus B would be the limit of the sequence Sn. So L is equal to B is what is the limit of the sequence. ठीक है, तो ये थे हमारे दो होमवर्क के क्वेश्चन जिनका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। दोनों सीक्वेंसेस जो है वो कन्वर्जेंट आई, दोनों का हमने डिस्कशन किया कहाँ कन्वर्ज करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर today's lecture where we have to finish a lot of theoretical statements, theorems। ठीक है, तो हम वो करते हैं। तो रिमेम्बर कि हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स डाल के लिखेंगे वो आपके पास थ्योरम भी हो सकती है या एज ए कोई जनरल स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो लिखना चालू करते हैं और मैं प्रूफ भी लिखूंगी हर एक का, और प्रूफ क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी हैव टू कवर टुडे इज दिस, और वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, इफ an कन्वर्जेस टू l, ऑलराइट, अगर हमारे पास सीक्वेंस an है वो कन्वर्ज करती है l पे, देन जो सीक्वेंस मॉड an होगी दैट ऑल्सो कन्वर्जेस टू, कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, मॉड l पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं एंड उसके बाद फिर हम समझेंगे कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास ये प्रूफ कैसे करेंगे। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा कहता है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस an है कन्वर्ज कर रही है l पे, तो आपको मॉड an के लिए कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके कह सकते हो यस मॉड an जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी, और कहाँ कन्वर्ज करेगी, मॉड l पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे, समझो कि सीक्वेंस an अगर हम लिखते हैं कुछ ऐसा a1 a2 a3, ठीक है, an लाइक दिस, तो मॉड an सीक्वेंस कैसे डिफाइन करी गई है, तो दिस इज नथिंग बट आप टर्म बाय टर्म मॉड ले लो, तो मॉड a1 मॉड a2 मॉड a3 एंड दिस इज मॉड an एंड लाइक दिस। तो ये आपने एक नई सीक्वेंस जनरेट करी, उसके कन्वर्जेंस नेचर पे आप आंसर कर रहे हो कि दैट कन्वर्जेस टू मॉड n। ठीक है, तो प्रूफ लिखते हैं इसका हम लोग, और बहुत सिंपल है। देखो जैसा मैंने बोला, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक, क्या दिया है कि सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्ज कर रही है l पे। क्या मतलब होगा इसका कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट फॉर विच व्हाट हैपेंस मॉड an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। करेक्ट, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दो। अब हमारा क्लेम क्या है, क्लेम मतलब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो सीक्वेंस मॉड an है दैट मस्ट कन्वर्ज टू मॉड l। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमने डेफिनेशन जब पढ़ी थी कि l इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस या सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l, तो यही तो कहा था कि अगर आपको इन प्रायर एक वैल्यू पता है जिसको आप कह रहे हो वो लिमिट है सीक्वेंस का, तो आप प्रूव कर सकते हो वेदर दैट इज द लिमिट और नॉट, है ना, बाय डेफिनेशन। तो वही करना है। अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन आप एक n नॉट ढूंढ के ला दो नेचुरल नंबर, फॉर विच व्हाट हैपेंस दिस सीक्वेंस मॉड an, है ना, मॉड an माइनस उसकी जो लिमिट है वो क्या हो जाए, वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर एवरी n ग्रेटर देन दैट n नॉट। तो वो n नॉट ढूंढना है।
तो एन नॉट ढूंढते हैं, लेकिन देखो अब यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा के इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दिस इज मॉड ए एन माइनस एल। यस, ऑल ऑफ यू, डू यू अग्री विथ दिस और नॉट, कि हम ऐसा लिख सकते हैं? हमने मॉडुलस प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। यस, तो मॉडुलस प्रॉपर्टी लगा के हम यहाँ पे इनइक्वालिटी आपने पढ़ी होगी, राइट? इनइक्वालिटी पढ़ी है। Those who have like they don't have any idea, they can just tell me. एक inequality पढ़ी होगी आपने, या सॉरी ऐसे, that modulus of an minus modulus of l is less than equals to an minus l, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। ठीक, अब फ्रॉम वन देखो हम क्या यूज कर सकते हैं, that your mod an minus l is what, less than epsilon। तो आगे प्रोसीड कर सकते हो, वॉट लेस देन एप्सिलॉन, किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, और ये एन नॉट आपको यहां से मिल जाएगा। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए आप एक एन नॉट ढूंढ पा रहे हो जिसके लिए ऐसा हो रहा है। तो ये लाइन क्या कर बोलती है कि फिर तो सीक्वेंस मॉड एन जो है वो मॉड एल पे कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो अब ये मैं प्रूफ क्यों लिख रही हूं, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में सेक्शन बी में आया, और सेक्शन बी में यू डोंट हैव एनी चॉइस बिकॉज चारों ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ते हैं। इट्स नॉट द केस एज इट विद एमसीक्यू कि आपने बस चारों में से कोई एक ऑप्शन देखा, वो सही हो गया एंड देन प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स नॉट द केस विद एमएसक्यू, राइट? एमएसक्यू में सेक्शन बी में आपको हर एक ऑप्शन चेक करना है। एंड थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि आपने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है इन योर प्रिपरेशन टाइम, तो अब ये स्टेटमेंट आया तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो वन वे इज टू गेट द काउंटर एग्जाम्पल, लेकिन अब क्योंकि स्टेटमेंट सही है तो आप कितना भी कोशिश करो काउंटर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप एक दो बार ट्राई करोगे और आपको काउंटर नहीं मिलेगा, देन यू विल थिंक ऑफ प्रोसीडिंग थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली तो ऐसे ही प्रोसीड करोगे ना कि ए एन को लेके चले, कन्वर्जेंट हो और मिल गया कि मॉड ए एन मॉड एल पे जा रहा, तो स्टेटमेंट ट्रू, आप आगे बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट, एंड आगे जो भी स्टेटमेंट मैं लिखवाऊंगी उसका भी प्रूफ बताऊंगी, सो दैट in exam you get an idea कि okay, if there is a statement in section B or in section A, you are like ready to deal with that kind of question or statement. ठीक है, नहीं काउंटर मिला तो you can proceed theoretically. So this is how you can approach those theoretical questions. That's why I'm giving you the proof. ठीक है, अब एक और बात आती है कि क्या इस स्टेटमेंट का कन्वर्स पार्ट ट्रू है। ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, कि क्या ये जो हमारे पास सीक्वेंस है या जो मॉड ए एन जो है वो अगर कन्वर्ज कर रही है तो क्या ए एन कन्वर्ज करेगी। तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो कि कन्वर्स ऑफ अबव नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, नीड नॉट टू बी ट्रू। जैसे अगर आप देखोगे हमारे पास एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं, ठीक है, ए एन, जिसमें हम लेते हैं -1 की पावर n। ठीक है, ये कैसे नहीं है डाइवर्जेंट है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो अब देखो अगर आप मॉड ए एन निकालोगे, सो दैट इज गोइंग टू बी मॉडुलस ऑफ -1 की पावर n, विच इज नथिंग बट 1। तो ये तो एक कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई ना, हमने जो कि पढ़ा था लेक्चर 2 में, दिस इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, और कांस्टेंट है तो कन्वर्ज भी करेगी, और कहाँ कन्वर्ज करेगी, 1 पे कन्वर्ज करेगी। तो मॉड ए एन तो कन्वर्ज है, लेकिन अगर मॉड ए एन कन्वर्जेंट है तो क्या हम ये कह देंगे ए एन कन्वर्जेंट है, विच इज द कन्वर्स स्टेटमेंट। इफ मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट देन ए एन इज कन्वर्जेंट, नो, दिस इज डाइवर्जेंट। ऑलराइट, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कन्वर्स पार्ट जो है वो ट्रू होगा। ट्रू हो भी सकता है, जैसे सपोज मैं ए एन को केवल 1 ले लेती, या सपोज -1 की पावर n ले लूं, तो मॉडुलस ए एन क्या आएगा, 1/n आएगा, वो भी कन्वर्जेंट है, और रिवर्स जाओगे तो ए एन भी कन्वर्जेंट है। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर नीड नॉट टू बी। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 आई होप सबको क्लियर है कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस ए एन है जो एल पे कन्वर्ज हो रही है, तो जो मॉड ए एन होगी वो फॉर श्योर मॉड एल पे जाएगी। ठीक है, चलो
सो लेट्स गो टू स्टेटमेंट नंबर 2, और स्टेटमेंट नंबर 2 हम देखते हैं हमारा क्या है, और उसको भी हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। सो क्या कहता है हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2, कि हमारे पास एक सीक्वेंस an है। ठीक, an इज अ नल सीक्वेंस, और कब ये नल सीक्वेंस होगा? an इज अ नल सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ an वाली एक सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, मॉड an इज अ नल सीक्वेंस। तो अगर ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखोगे तो ये स्टेटमेंट बोथ साइडेड ट्रू है। बोथ साइडेड ट्रू का मतलब अगर ए एन नल सीक्वेंस है तो आंख बंद करके कह सकते हो कि मॉड ए एन इज ऑल्सो अ नल सीक्वेंस, एंड इफ मॉड ए एन इज अ नल सीक्वेंस then you don't have to think anything about sequence an. You can just directly say an is a sequence which is a null sequence. And null sequence आप सबको पता है, I have already explained this, that a null sequence is a sequence which converges to zero, or a sequence whose limit is zero is said to be a null sequence. ठीक है, so this statement is both sided true. तो अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये both sided true कैसे है। देखो, अब सबसे पहले हम 1 implies 2 प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कैसे? सपोज करते हैं कि मेरे पास जो an है वो क्या है? वो एक नल सीक्वेंस है। ठीक है, an इज अ नल सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस an जो है वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है। अब अगर 0 पे कन्वर्ज कर रही है तो क्या मतलब होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट, अ नेचुरल नंबर फॉर विच व्हाट हैपेंस, mod an minus 0 is less than epsilon for every n greater than equals to n naught. करेक्ट, बिकॉज 0 लिमिट है तो ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो क्या मिला? mod an is less than epsilon for all n greater than equals to n naught. अब हमारा क्लेम क्या है यहाँ पे, यानी हमें प्रूफ क्या करना है कि सीक्वेंस mod an जो है वो नल सीक्वेंस हो जाए, यानी कि वो 0 पे कन्वर्ज कर जाए। ठीक, तो अब देखते हैं, प्रोसीड करते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम एक एन नॉट ढूंढने की कोशिश करते हैं हर एक गिवन एप्सिलॉन के लिए। तो मॉडुलस ऑफ मॉड an, और वो 0 पे ही जा रहा है तो 0 लिख देते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं एक एन नॉट। अगर ऐसा हम कर पाए देन इट मीन्स यस 0 इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस मॉड an, दैट इज वाई मॉड an इज अ नल सीक्वेंस। तो इसको आप कैसे लिखोगे? मॉडुलस ऑफ an, और दो मॉडुलस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसको मॉड an लिख दोगे। अब यहां देखो, एक फर्स्ट इक्वेशन में मार्क कर देती हूँ, तो इसको आप लिख दोगे ना लेस देन एप्सिलॉन, कहां से? फ्रॉम 1 से, किसके लिए? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। तो अब अगर इस लाइन को मैं दोबारा लिखूं तो आपने क्या लिखा? मॉड of mod an minus 0 is less than epsilon for all n greater than equals to n naught. तो यहां से क्या लिख पा रहे हो आप कि जो मॉडुलस ऑफ an सीक्वेंस है वो कहां चली गई? 0 पे चली गई, मतलब दैट इज अ नल सीक्वेंस। तो 1 implies 2 प्रूव हो गया ना कि इफ an is a null sequence then mod an sequence is also a null sequence। बहुत सिंपल सा था, इसलिए मैंने कहा प्रूफ जो होते हैं, थ्योरेटिकल प्रूफ जो होते हैं, दैट आर वेरी सिंपल। आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है बस उसी से प्रोसीड करो। नल सीक्वेंस बोला है, ओके, उसका डेफिनेशन लिख दो। प्रूफ करना है कि ए नल सीक्वेंस है तो मतलब 0 लिमिट पता है, प्रोसीड किया तो हर एक एप्सिलॉन के लिए एक एन नॉट दे दिया, मतलब यस मॉड an इज अ नल सीक्वेंस। ठीक है, अब ये तो हो गया वन साइडेड, यानी अगर ए नल सीक्वेंस है तो मॉड an भी नल सीक्वेंस होगा। अब 2 implies 1 के लिए क्या बोलेंगे? 2 implies 1 मतलब अब हमें सपोज करना है क्या कि हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ an सीक्वेंस है वो एक नल सीक्वेंस है। ठीक, और हमारा क्लेम क्या होगा कि an नल सीक्वेंस बन जाए। तो यहाँ क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिख दो, मॉड an नल सीक्वेंस है तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट अ नेचुरल नंबर फॉर विच व्हाट हैपेंस, मॉडुलस ऑफ an minus 0 is less than epsilon for all n greater than equals to n naught। ठीक, अब इसमें आगे प्रोसीड करो
तो आप इसको ऐसा लिखोगे लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। दो मॉडुलस का कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ मॉड an आ गया, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। और अब देखो एक लाइन जैसे ही मैं लिखूंगी ये प्रूव हो जाएगा कि, ध्यान से देखो, ये प्रूफ कर दिया ना इस वाले लाइन ने। क्या प्रूफ कर दिया कि जो सीक्वेंस an है वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है, मतलब जो सीक्वेंस an है वो हमारे पास एक नल सीक्वेंस होगी। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा था ये। ठीक है, अगर हमारे पास an नल सीक्वेंस है तो मॉड an होगी, मॉड an नल सीक्वेंस है तो an भी नल सीक्वेंस होगी। ठीक है, वेरी सिंपल। If you have any problem, again and again I am telling you and suggesting you to please ask me either in comment section or on Telegram. I'll be happy to answer all your questions. Alright? चलो, तो अभी हम अपना थर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं और थर्ड स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो भाई। सो थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? ये भी बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या कि सीक्वेंस an जो है कन्वर्ज करती है किस पे? कन्वर्जेस टू L। कब? इफ एंड ओनली इफ जो हमारे पास सीक्वेंस an माइनस L है वो कैसी हो? वो एक नल सीक्वेंस हो, यानी कि वो 0 पे कन्वर्ज कर रही हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट कि an कन्वर्जेस टू L है तो an माइनस एल 0 पे जाएगा, और अगर an माइनस एल 0 पे जा रहा है तो an L पे जाएगा। ये भी स्टेटमेंट जो है वो बोथ साइडेड ट्रू है, यानी कि इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करो। हम यहाँ पे 1 implies 2 प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो क्या लेके चलेंगे हम कि जो हमारा an है वो L पे जा रहा है। इसका क्या मतलब होगा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक n नॉट हमें मिलता है नेचुरल नंबर, फॉर विच व्हाट हैपेंस, लेट मी राइट इट हियर फॉर ऑल ऑफ यू, सच दैट mod of an minus l is less than epsilon for all n greater than equals to n naught। करेक्ट। अब जरा एक स्टेप आगे बढ़ो, क्या लिख सकते हो? इसको ब्रैकेट में कर लो, an माइनस एल एक सीक्वेंस बना लो, माइनस का 0 लिख दो, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। तो क्या पता लग रहा है? an माइनस एल एक सीक्वेंस है जिसमें 0 उसका लिमिट बन गया है, बिकॉज हर एक एप्सिलॉन के लिए आप एक n नॉट ढूंढ पा रहे हो। तो ये क्या बोल रहा है? ये यही तो बोल रहा है कि जो an माइनस एल है वो 0 पे कन्वर्ज हो गया। इट मीन्स व्हाट? कि जो an माइनस एल सीक्वेंस है दैट इज अ नल सीक्वेंस। हो गया प्रूफ। देखो सिंपल सा था। अब जिनको समझ नहीं आ रहा है कि an माइनस एल सीक्वेंस क्या होगा, तो देखो a1 अगर हमारे पास a1 a2 a3 an है तो हमारे पास an माइनस एल क्या होगा? देखो मैंने हर चीज बोली आपको, सीक्वेंस में सब कुछ टर्म बाय टर्म होगा, है ना। ये देखो an माइनस एल एंड सो ऑन। इट्स काइंड ऑफ दो सीक्वेंसेस को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो an अगर l पे जा रहा है तो an माइनस एल कहाँ जाएगा? वो पक्की बात है 0 पे जाएगा। ठीक, अब 2 implies 1 भी देख लेते हैं। मतलब कहने का क्या है कि हमारे पास जो सीक्वेंस an माइनस एल है वो कैसी है? वो एक नल सीक्वेंस है। ठीक, तो सपोज करो an माइनस एल जो है वो 0 पे जा रहा है, और प्रूफ क्या करना है कि an l पे जाए। तो अब अगर an माइनस एल 0 पे जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट अ नेचुरल नंबर फॉर विच व्हाट हैपेंस, मॉडुलस ऑफ an माइनस एल सीक्वेंस उसका लिमिट लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। आगे प्रोसीड करो जरा, ये an माइनस एल 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। तो इस लाइन से क्या कह रहे हो? हर एक एप्सिलॉन के लिए एक n नॉट मिल रहा है जिसके लिए l जो है वो लिमिट बन जा रहा है सीक्वेंस an का। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम हियर? दैट सीक्वेंस an गोज टू l। सिंपल था, very simple। all right, that if sequence an converges to l then an minus l converges to 0,
और इफ an minus l converges to 0, an converges to l. ठीक, एक और स्टेटमेंट करेंगे हम आज की क्लास के लिए, और फिर बाकी के बचे हुए स्टेटमेंट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक, तो लिखते हैं हम अपना स्टेटमेंट नंबर 4 विद इट्स प्रूफ. बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है. ठीक है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को. एंड कौन सा स्टेटमेंट नंबर होगा? 4th. ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 4 हमारे पास ये कहता है कि इफ वी हैव टू सीक्वेंसेस an एंड bn, जिसमें an और bn के बीच में जो nth टर्म है ये रिलेशन होल्ड हो रहा है फॉर एवरी n. ठीक है, एंड उसके साथ हमारे पास जो bn है वो कैसी है? वो एक नल सीक्वेंस है. ठीक, तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमको. गिवन ये है कि दो सीक्वेंसेस हैं an और bn, जिसमें हर एक टर्म ये रिलेशन होल्ड कर रहा है. आई एम सो सॉरी, इसको मॉड बना लो. दैट मॉडुलस ऑफ an इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ bn, और bn 0 पे कन्वर्ज कर रही है. तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो सीक्वेंस an होगी ना हमारे पास, दैट इज ऑल्सो अ नल सीक्वेंस. ऑलराइट, the sequence an is also a null sequence. So how we are going to prove that? Let's have a look. So first of all, let me write what information is given to us. The information that is given to us is modulus of an is less than equals to modulus of bn, and this is not happening only for one or two terms. This is happening for every term of the sequences an and bn. And then what do we have? Then the sequence bn converges to 0. ठीक, and what should be our claim? That is what we want to prove, that the sequence an goes to 0. So let's proceed. Since it is given that bn is a null sequence, so write the definition. For every epsilon greater than 0, there exists a natural number n naught for which what happens? Mod bn minus 0 is less than epsilon for all n greater than equals to n naught. Alright, so what it became? Mod bn is less than epsilon for every n greater than equals to n naught. Now we are going to use some information which is given to us. टर्म्स के बीच में कुछ बाउंडेडनेस से रिलेटेड एक रिलेशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? सिंस mod an is less than equals to mod bn for every n. Now if I mark this 1 and if I mark this 2, so see here from 1 and 2, what I can write is, I can simply write mod an is less than equals to mod bn less than epsilon for every n greater than equals to n naught. करेक्ट. अब हम ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनको यूज कर सकते हैं आपस में. तो क्या इंप्लाई कर सकते हैं यहां से हम कि जो मॉडुलस ऑफ an है दैट इज लेस देन epsilon फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n naught. Proceed one more step. an minus 0 is less than epsilon for every n greater than equals to n naught. So now you see what I am highlighting. For every epsilon greater than 0, there exists a natural number for which this inequality holds. So simply what does it imply? That the sequence an converges to 0, or it means sequence an is a null sequence. Correct? सो स्टेटमेंट इट्स क्वाइट सिंपल. तो देखो ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प भी करेगा. सपोज किसी क्वेश्चन में आपको दो सीक्वेंसेस दी हुई हैं, ठीक, एंड समहाउ आपने पता कर लिया कि सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है और bn नल सीक्वेंस है, तो फिर आपको an के बारे में कुछ पता करने की जरूरत नहीं. आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि येस दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एंड नॉट ओनली इट इज कन्वर्जेंट, इट कन्वर्जेस टू 0. ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टेटमेंट्स थे, और हमने अपने होमवर्क के 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए. तो व्हाट वर द 4 स्टेटमेंट्स दैट वी टॉक्ड अबाउट टुडे? द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज इफ sequence an converges to L, then mod an obviously converges to mod L for sure. Statement 2 was if sequence an is a null sequence, then mod an is also a null sequence, and if mod an is a null sequence, then an is also a null sequence. Statement 3 was if an converges to L, then an minus L converges to 0, or if an minus L converges to 0, an converges to L. Alright. And then final statement was
that if you have two sequences an and bn where modulus of an is less than equals to modulus of bn for all n and bn is a null sequence, then an is also a null sequence. ठीक है, तो ये हमारे आज के कुछ स्टेटमेंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए अलॉन्ग विद देयर प्रूफ. तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर स्टेटमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन Cauchy theorems on limits. All right. So till then, bye bye. Take care. Keep studying. And if you have any question, please ask us.